वेलकम बैक नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की और हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज की। प्रोग्राम है वाइड एंगल। रूपान साहब, ये जो क्लिनिक्स हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, इनमें क्या क्या सर्विसेज हैं? थोड़ा सा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स चलें, ऐसी बात कर लेते हैं। I mean, basically, we take care of primary care. Before even I go to that area, we don't even call ourselves a clinic. We are a resource center. Okay. We are not just providing services, but we go beyond the primary care services. अगर हमें किसी patient को hospital भेजना है, या just give you an example. A 60-year-old man came to me that he had cataract in both eyes, and he does not have money to get the cataract done. But through Ibn Sina, we're able to connect him to another organization where he was able to serve and get the cataract removed. So we are a resource center. We help communities, members who can afford. Just give you an example. Another example, we took that one patient to Memorial Hermann for a small surgery, and they were charging him $17,000. But then we were able to connect him to the right hospital to get that surgery done in $2,500. So we are a resource center. We are not just cough and cold clinic. So you guide them, you give them consultations, आप provide करते हैं, assistance देते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी even जो लोग अपनी जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, so we connect them through free medication. We connect them through फार्मेसी कंपनी से हम उसको फ्री मेडिकेशन मंगा के देते हैं। क्योंकि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये मैंने देखा किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ी अहम बात है। और यहाँ जो लोग आते हैं, जो तारकीन वतन जिन्हें हम कहते हैं, अपना मुल्क छोड़ के, और वो नए नए होते हैं, नया कल्चर, नए लोग, नया माहौल, तो उन्हें नहीं पता होता क्या करना है। तो उस वक्त सही इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा अहम काम है। बिल्कुल, हमने कई लोगों को जिन्हें अभी 10 साल पहले कई कम्युनिटी मेंबर को ये पता नहीं था कि हाउ टू गेट दी गोल्ड कार्ड। सो हम हफ्ते में एक दिन सारे अनाउंसमेंट करके लोगों को जमा करके उनके गोल्ड कार्ड बनवाते थे, ताकि उनको पता जाके दे कैन गो टू हॉस्पिटलाइज एंड गेट फ्री सर्विसेज। सो मैं कह रहा हूँ कि इब्न सीना फाउंडेशन is just not a cough and cold clinic, is a resource center for the communities and community at large. We provide far more services beyond primary care. We do have, diagnostic services and our dental services. Our dental services are 20% of the market cost today. We are serving the community way below than the market rates because we are basically oversighted by our volunteer board of directors. Our board of directors spend hours and hours every week to really make this clinic affordable to the community. Pardon my interruption. It's a great service this gentleman is doing. I have huge respect for him. I know him for years, both brothers. It's not a question of their services. They are great services, no doubt about that. But my point is, this is their purpose is to serve the community. It's serving the community, that the community remain healthy. That's their real objective. So, if they include this awareness training among their patients, because they are not a professional organization wholly solely responsible for profits. Their objective is to serve the mankind, serve the people of our community. So in that regard, वो अजानी साहब ने कहा कि उनके यहाँ वो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग के, इंफॉर्मेशन के और अवेयरनेस के सेशन होते हैं। ये बताइए, मेरा एक और क्वेश्चन आप, वो क्वेश्चन ये है कि वॉलंटियरिज्म जो है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए कि लोगों की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करना है, और वो ज़रूरियात वैसे पूरी नहीं होती हैं। आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में कितने वॉलंटियर्स? देखो जी, आदमी की 6 बेसिक नीड्स हैं, 6 जो मेरी बातें हैं ना, जब people pay me very heavily to listen to my 1 hour. जी 6 basic needs हैं. One basic need is certainty. एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि आपका जो लिविंग स्टाइल है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी लाइक टू बी लव्ड,
ये सेकंड नीड है. एवरीबॉडी लाइक टू बी लव्ड, एवरीबॉडी लाइक टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एवरीबॉडी लाइक टू मेक द कंट्रीब्यूशन, राइट, एंड एवरीबॉडी वांट टू ग्रो. अब ये जो ग्रोथ नीड है और कंट्रीब्यूशन नीड्स हैं, ये जो अदर नीड्स हैं, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, ये अगर जब तक ये पूरी ना नीड्स हों तब तक आदमी कंट्रीब्यूशन और वॉलंटियरिज्म पे नहीं जा सकता ना. जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन हाँ, बिल्कुल ठीक है. मैं एक और बात मैं और तरफ आता हूँ. मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इस वॉलंटियरिज्म को बढ़ाना है तो हमें ऐसे सोर्सेज, नॉट ओनली दीज टू जेंटलमैन, बट वी हैव टू फाइंड अदर पीपल who are बिल्कुल सही, very wealthy, हाँ, and very valid they point. should come forward and वैसे भी complement their efforts. डॉक्टर अजानी, वैसे भी जो हुकूमतें होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती. वो आम आदमी को वो सहूलतें फराहम नहीं कर सकती जो वो उसका हक बनता है सोलली. उसके लिए इदारे आगे आते हैं, NGOs आगे बढ़ती हैं, लोग प्राइवेट ज़ाती सतह पे आगे आते हैं. तो उस हवाले से तो ये बहुत बड़ा कदम है. आप क्या समझते हैं कि इस तरह के और कैसे इदारे हों? क्या लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही हैं या और इदारों को आगे आना चाहिए? शिफा है, अगर आप उसको कंपैरिजन करें शिफा के साथ, तो शिफा इज़ आल्सो डूइंग a गुड जॉब. तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आप देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और आई एम ग्लैड कि आप वाइड एंगल के थ्रू ये वॉलंटियरिज्म का मैसेज भेज रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू मेक दिस अ पॉइंट, क्योंकि विदाउट वॉलंटियरिज्म इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमैनिटी टू सर्वाइव. और जिस तरह आपने जिक्र किया था सोसाइटी का, एक नया टर्म निकला है सिविल सोसाइटी जी. क्योंकि सेहत, हाउसिंग, फाइनेंस, बिजनेस, this is not only the responsibility of the government, but it is also the responsibility of the private sector. We as the private citizen, अगर खुदा ने हमें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया है, so it becomes compulsory on ourself, because जिस तरह हम ज़कात पैसे के देते हैं, इसी तरह we are supposed to impart our time and knowledge contribution. ठीक है, जब तक मैं अपना टाइम नहीं देता हूँ, आई एम नॉट फुलफिलिंग माई सिविक ड्यूटीज. जब तक मैं अपनी वॉलंटियरिज्म नॉलेज नहीं देता हूँ, आई एम नॉट. सो दैट वाज द होल बेसिस व्हेन वी फोर सेट टुगेदर एंड वी सेड दैट रूपानी साहब, डॉक्टर अजानी, अल्लाह ने हमें बहुत दे दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट मिशन. And that's, I started working and he has been working in several different institutions. Shifa is my parent organization, क्योंकि मैंने अपनी वॉलंटियरिज्म की इफ्तिताह शिफा से की थी. एंड आई विश कि हमारे जो मेंबर्स फॉर द शिफा कम्युनिटी है वो हमारे साथ होते, क्योंकि वो भी आज उतनी ही सर्विसेज दे रहे हैं जितनी इब्न सीना दे रहे हैं. एंड वी बोथ वर्क टुगेदर, ऑल्दो वी आर टू फाउंडेशंस, लेकिन उनका मॉडल डिफरेंट है, हमारा मॉडल डिफरेंट है, बट वी वर्क टुगेदर. So I think this is giving us the opportunity to tell the community that if God has given you enough, then please impart it. Whether in the form of money, knowledge, time or volunteerism. बिल्कुल सही. इसके बगैर जो है ना, ये दुखी इंसानियत को ऊपर लाना बहुत मुश्किल है. So I think, और अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर वॉलंटरी वर्क और चैरिटी डोनेशन होती है. So this is the country. And I think आप जो खुशी की बात कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ गज़नफ़र साहब के जो खुशी आपको वॉलंटियरिज्म करके मिलती है ना, बिल्कुल सही. You can never buy that. बिल्कुल ठीक. और that is something that you can only experience. लेकिन मैं कयूम साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर लोगों की बेसिक बुनियादी चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो वो शख्स वॉलंटियरिज्म नहीं कर सकेगा. बिल्कुल सही. So we need to empower those people to bring it up. Good health, physically, mentally, socially and spiritually. Why we want to be in a good health? So that we can fulfill our spiritual obligation. अगर पेट में खाना नहीं होगा तो मैं कैसे इबादत करूँ? बिल्कुल. अच्छा, मैं अब आप सबको एक और पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूँ. वो है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को या पाकिस्तान को इमेज के मसाइल भी हैं. यहाँ रहते हुए काफ़ी इश्यूज़ हैं. कल्चरल जो इंटीग्रेशन है या इंटर रिलीजियस हार्मनी है या आगे बढ़ना या मेन स्ट्रीमिंग के इश्यूज़, इधर चैलेंजेस हैं, हमारे मसाइल हैं. क्या समझते हैं आप कि इस तरह के जो इक़दाम है रूपानी साहब, ऐसे क्लिनिक्स का, कम्युनिटी सर्विस का, एक ऐसा क्लिनिक या एक ऐसा रिसोर्स सेंटर जिसमें कोई किसी ख़ास कम्युनिटी की को सर्व नहीं किया जा रहा, उसमें सभी आ रही हैं ना? बिल्कुल. उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें दूसरी नॉन मुस्लिम्स भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, सारे हैं.
तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ख्याल में? बेसिकली बिफोर आई इवन मैं उस सवाल का जवाब दूं, आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड हियर कि टुडे His Highness the Aga Khan is promoting civil society organizations because around the world, क्योंकि government will not be able to reach each and every citizen of their country. सही. So civil society organization के through we will able to reach out to the people who are not being served. And this is what the Ibn Sina is following those guidelines and trying to achieve the mandate to serve the humanity. आपका सवाल basically I'm missing now. मेरा सवाल ये था कि चूँकि ये जो क्लिनिक्स हैं किसी खास कम्युनिटी को सर्व नहीं कर रहे हैं, ये तो एक I mean all embracing है ये सारा. See, and again I'm going to go back to the same. When His Highness is basically preaching is that we have to walk the talk. We don't just talk. We have to serve and be a model Muslim. And by serving, we are basically letting people know that who are we. And we have to, as a Muslim, we have to show because it's part of our responsibilities to serve humanity. And through these organizations, we can show our positive face of Islam. And this is what Ibn Sina is striving and will continue to strive. यानी वो इस्लाम का वो रुख दिखाना चाहिए जो असल में है. यानी वो इसी तरह का इक़दाम से. The problem with our people is that they do not understand that good habits are hard to form, easy to live with. Good habits are very hard to form. Like exercising every day is very tough for me. You know, I have to get up early in the morning and walk 70 minutes on the elliptical. Okay, it's a good habit, but it's very hard to form. But easy once it's made, it's easy to live. Eating less is a very good habit. You know, we can form that. It's a good habit. हाँ जी, but difficult to cultivate this habit क्योंकि हमारी impulses जो हैं वो हमेशा we run after instant gratifications, instant, regardless whether रूपानी साहब हैं या ये सारे हैं या मैं हैं. When we see more, we go towards more. You know, this is our impulsive, this is our natural quality. तो हम लोगों को ये understand करना चाहिए कि we must cultivate good habits to remain healthy. अगर एप्पल पड़ा हुआ है और कैंडी पड़ा हुआ है तो आपने एप्पल को पिकअप करना है, कैंडी को नहीं पिक करना. वैसे जान साहब यहाँ के जो हम लोग हैं, I agree with you 100%. हम लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी हैबिट्स में और यहाँ के जो लोग उनकी हैबिट्स में क्या फ़र्क है? देखिए हैबिट्स में हेल्थ वाइज हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत डिफरेंट है. जब इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से हम आते हैं तो जिस किस्म का खाना हम खाते हैं, घी तेल मुरगन खाना, बिरयानी वगैरह, और फिर जो यहाँ की डाइट है, सो डेफिनेटली फ़र्क तो है. लेकिन आई एग्री विथ हिम कि द हैबिट को एक्वायर करना मुश्किल है लेकिन उसको प्रैक्टिस करना ईजी है. सो हैबिट्स को चेंज यहाँ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो है खाने की चीज़ें हैं, वहाँ की खाने की चीज़ें हमको लगता है कि नहीं मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता. एंड वी प्रीच, वी टीच एट आवर क्लिनिक. हमने तो गोरों की आदतें बदल दी खाने के मामले में. हमने तो उनको अपनी आदतें डाल दी ना. तो ये तो हमारी वैसे कामयाबी है. हाँ, लेकिन आई एग्री विथ कि आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ. इस तरह के डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स हमारी टोटली डिफरेंट है. ओके, यहाँ के लोग जो हैं दे डू मोर एक्सरसाइज, वी पीपल डोंट डू एक्सरसाइज. यहाँ के लोग जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज, वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज हम इंडिया पाकिस्तान में भाग दौड़ कर ही एक्सरसाइज कर लिया करते थे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न व्हाट आर द गुड हैबिट्स, व्हाट आर द बैड हैबिट्स एंड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन. आपने एक सवाल पूछा था कि कम्युनिटी मिक्स क्या है. इब्न सीना सिर्फ 38% इंडो एशियंस को सर्व करता है. 68% we are serving the other mainstream Americans. And we want to give this message to the mass in general that we, the Muslims,
चाहे शिफा हो, चाहे नहीं, ये कोई इब्न आपने सीना हो। डेलिबरेटली किया है या Yes, ये yes. वैसे ही नहीं, दिस वाज वन ऑफ द, अगर आप इब्न सीना का चार्टर देखेंगे ना, तो चार्टर उसमें है लिखा हुआ। उसमें ये लिखा हुआ है कि वी आर सपोज टू शो द पॉजिटिव फेस ऑफ इस्लाम। तो पॉजिटिव फेस ऑफ इस्लाम सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, वी हैव टू डू इट। जैसे तो रूपाली साहब कैसे आपने बताया कि वो नॉन मुस्लिम्स भी आए? that first of all the clinic is marketed everywhere because we market in churches, we market in synagogues, Jewish community because they all come to us. फिर वो आके बोलते हैं कि ये आपने नाम कैसा रखा इब्न सीना। तो हमारे क्लिनिक के अंदर बड़ा सा लिखा हुआ है कि भाई आप इब्न सीना कौन था। एक मुसलमान था, एक फिलोसोफर था, एक डॉक्टर था, ह्यूमैनिटेरियन था, पोएट था, मुंसिफ था, और इसने वो कानून की, इसने तिब की वो किताबें लिखी है जो यूरोप के अंदर अभी तक पढ़ी जाती है। तो फिर वो कहते आप मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग भी होते थे? तो हमने कहा होते नहीं, आज भी वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पता है। तो फिर बोलते आपका क्या मजहब? मुसलमान मजहब है, हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। सो दे गेट इम्प्रेस्ड, पीपल गेट द मैसेज। मैं वैसे ये बड़ा आपने एक इंटेलेक्चुअल बहस छेड़ी है कि वो हमने असल काम तो हमने किया, मुसलमानों ने किया ना, जब बिल्कुल। तब मैं दूसरों, लेकिन मैं ब्रेक से वापस आके आपसे पूछूंगा, आप चूंकि हमारे इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेंट हैं, मैं आपसे पूछूंगा इसका जवाब। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है और आप देख रहे हैं वाइड एंगल, तारा एनर्जी के ताउन से दोबारा आते हैं आपके पास।